Hello, friends. A very warm welcome to Ansarkari. And in today's topic, we are going to pick up those themes and ideas which are really going to help us in getting the best with respect to prelims, mains, and also our overall integrated approach. Because we are taking up all, whether it is history, whether it is science, whether it is environment, and so forth. No idea is remaining out of our bounds. तो यहाँ पर पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको थीम पता होने चाहिए, ग्रेविटेशनल वेव्स, एंड देन हाउ द मर्जर ऑफ टू ब्लैक होल्स दे क्रिएट बिगेस्ट वेव्स, मींस द बिगर वेव. A black hole merger is one of the most spectacular event in the universe. Massive amount of energy is released and it is propagated to large distance through gravitational waves. सोचिए कितनी बड़ी बात. Then यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है, movement of a boat in a lake producing ripples in water. So gravitational waves are ripples in space time created by movement of massive objects. और लेकिन ये वेव जो है एक्सट्रीमली वीक होती हैं और जब बहुत बड़ा इवेंट होगा तभी डिटेक्ट हो सकती हैं, अदरवाइज दे आर नॉट टू बी डिटेक्टेड. So gravitational wave existence was proposed by Albert Einstein's general theory of relativity in 1915, but in 2015 it took us 100 years to understand LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. So two detectors in the US with extremely sensitive equipment which can detect gravitational waves. और वर्ल्ड में कहीं है ही नहीं. The new find, as I told you, that black holes are more massive than any seen in previous detectors, something that current theories find very, very difficult to explain. One of the black holes is 140 times the mass of our sun. 140 times. Other is 100 times bigger. So the much bigger black holes are existing in the universe. Supermassive black holes, million times are more massive than the sun. So black hole in this specific size range, that is between 100 to 150 times bigger than sun, are not expected to exist. That is what we are believing. And the stars that can produce black holes in this particular size range are currently understood to meet different kinds of end. और वो generally black hole नहीं बनते हैं. So at least one of the black holes involved in the event was spinning at very high speed, almost at the limit of what is possibly under general theory of relativity. इसीलिए इसमें इंटरेस्ट आया. सो पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसा मैंने बताया, लीगो ने डिटेक्ट किया 2015 में, and invisible to traditional measures are being used. Gravitational waves are generated by all moving objects in the universe, and sufficiently large events के बाद ही आप उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं, and they are very weak waves, और इंफॉर्मेशन हमें मिलती है यूनिवर्स के बारे में. So LIGO 2015 attempt, and then a few more observations have come up after that. One can say that KAGRA in Japan, that is Kamioka Gravitational Wave Detector in Japan. These are known as LVK collaboration. The latest discovery has come from this collaboration. So बहुत इंटरेस्टिंग, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. LIGO is proposed to have third laboratories in India, that is called LIGO India Observatory, but the construction is running way behind schedule. Originally supposed to begin operations in 2024. A final government approval or earmarking 2,600 crore for the project came only in 2023. So DAE is handling the project. Site is in Hingoli, Maharashtra, and as per latest information, construction is expected to start later this year and completed by 2030. Very important for the prelims. Going ahead, what do you know about African kingdom of Eswatini, where the US has sent 5 deportees? तो ये important नहीं है. आप लिसोतो देखो, आप बोत्सवाना देखो, जिम्बाब्वे देखो, मोजाम्बिक देखो, नामीबिया देखो, और आप देखो कहाँ से इक्वेटर जाएगा, कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाएगा, और कहाँ से आपकी जिम्बेजी रिवर जाएगी, कहाँ से आपका प्लेटू है, कहाँ से आपकी रिवर्स है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम. The Donald Trump's turnaround on Russia is also part of the strategy. It is also part of their national interest. It is part of their, US hegemony का हिस्सा है. तो Russia is not surprised, and NATO and Europe have shown it is important to build on own capabilities. वो अपना कर रहे हैं. इंडिया जो है अपने नेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करके कर ही रहा है. यूएस डिमांड है कंसेशन की हमारे यहाँ, लेकिन हम उसे करने वाले नहीं है. सो यूएस प्रेसिडेंट को डिप्लोमेटिकली, ऑफिशियली, अनऑफिशियली और इनफॉर्मल भी उनको आप कह सकते हो इंगेज करना पड़ेगा. दिस इज समथिंग पाकिस्तान इज डूइंग टुडे
by engaging the Trump's inner circle of family and advisors. Some European leaders have too done the same by playing golf with the president or by praising and by giving him gifts. आप कतर का प्लेन सोचो, तो न्यू दिल्ली की अपॉर्चुनिटी है कि अगर प्रेसिडेंट जो है ट्रेवल करते हैं इंडिया क्वाड के लिए, एक ऑफिशियल ट्रैक होगा और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट इज वेल एस्टेब्लिश टू एंगेज हिम थ्रू द नेटवर्क्स इन इंडियन डायस्पोरा। तो देखते हैं अभी, और इसीलिए हमें आगे सीखना होगा, आगे देखना होगा। सरकार चाहती है कि पीपल मस्ट ईट हेल्दी, तो क्या ये सरकार के चाहने से हो जाएगा? गुड फैट बैड फैट की कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है, प्रीलिम्स के अंदर ये नहीं आएगा, लेकिन आपको अच्छे से पता होना चाहिए आईसीएमआर न्यूट्रिशन गाइडलाइन, कंज्यूमिंग बिटवीन 4 to 10 स्पून एवरी डे एंड मीटिंग मोस्ट ऑफ वन रिक्वायरमेंट फ्रॉम सीड्स नट्स एंड पल्सेस एंड बीन्स। तो मिक्स होना चाहिए 2 to 3 ऑयल्स का, ये बहुत मूफा पूफा ये सब हम कर चुके हैं। शेल्फ लाइफ देखिए, सो आप कह सकते हैं कि एसएफए रिच पाम ऑयल इज यूबिक्विशियस इन पैकेज्ड फूड टुडे। आपको पोटैटो चिप्स में मिलता है, बिस्किट आइसक्रीम चॉकलेट सब जगह आता है, ये तो बहुत खतरनाक है। क्योंकि पैकेज फूड तो हमारा ट्रांस फैट जो यूज कर रहा है कंटेनिंग हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स, ट्रांस फैट नॉट ओनली इंक्रीज द लेवल्स ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी बट आल्सो ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल, उल्टा काम है। सो पैकेज प्रॉब्लम है, आप ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग फर्दर, व्हेन एवरी क्वेश्चन काउंट्स, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज पेपर 2 कि भाई आप कैसे क्वेश्चन आर का आखिर वैल्यू क्या है। तो अटल पेंशन योजना की बात है, जैसे अब पीएम इंटर्नशिप स्कीम है, उड़ान स्कीम है, समग्र शिक्षा स्कीम है, इंडेडिनेस ऑफ फार्मर्स है, माल न्यूट्रिशन है, लोन राइट ऑफ्स है, पीएम कुसुम है, पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, डिजिटल फ्रॉड्स की बात है, साइबर अटैक्स है, मैनुअल स्कैवेंजिंग है, वैकेंसीज इन केंद्रीय विद्यालय। तो इससे हमें पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच nation wants their representatives to take, and that is why it becomes important. In a country of vast linguistic diversity, should those who live and work in other states learn the local language? तो वही बात है, लैंग्वेज लाई एट द रूट ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी, और उसके साथ छेड़छाड़ करना एक तरीके का पाप है, एक तरीके का देशद्रोह के जैसा है, ट्रेजन। या तो उसको पोएट्री बोल दो या ट्रेजन मान। तो इसीलिए बात है कि भाई एक एक अगर आप आइडियोलॉजी लेते हैं कि भैया आप जो है जिस जहाँ जाते हैं वहाँ की भाषा सीखेंगे ही सीखेंगे या नहीं सीखेंगे या इम्पोजिशन होगा, ये अपने आप में बड़ा डिबेटेबल है। आइडियोलॉजिकल भी है, पॉलिटिकल भी है, और अदर व्यू भी है कि लैंग्वेज क्वेश्चन, क्योंकि क्या है, एम्प्टी पॉलिटिक्स करने से मराठी कन्नड़ आप दूसरों पर लाद दोगे ऐसा नहीं होता। तो महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना ने अटैक की, जैसा हमने देखा, क्योंकि जब हम ये देखते हैं दैट पीपल हु आर माइग्रेटिंग टू द मेट्रोपोलिस, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, बिकॉज दे आर इन वन सेंस इकोनॉमिक रिफ्यूजीज। लेबर एक्सपोर्टिंग स्टेट झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा भी है उसके अंदर। दे आर द पुअरेस्ट, वर्स्ट ह्यूमन इंडिकेटर, दे मे नॉट हैव गॉन टू स्कूल आल्सो, सिक्योरिटी गार्ड है, रिक्शा पुलर है, people who paint houses, make furniture, for the well heeled they cook, they raise children. So availability of cheap labor allows upper middle class couples the luxury of two incomes। देखिए अब आप, तो इसीलिए लैंग्वेज वो सीखे ना सीखे इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ चॉइस। But Delhi, where lingua franca of the working class is Hindi, there is no question of imposition. Even बंगाली यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे, वो भी हिंदी बोलना सीख जाते हैं थोड़ा थोड़ा, हैवी एक्सेंट रहता है। बेंगलोर और चेन्नई में द लैंग्वेज इज हार्डर फॉर दोज हु कम फ्रॉम इंडो गैंजेटिक प्लेन, तो इसीलिए पंगा हो जाता है। तो आउटसाइडर इनसाइडर हमें नहीं जिता पाएगा, यू नो। तो पॉइंट यही है कि गुड़गांव का जो जैसे अब एग्जांपल था पुअर अर्बनाइजेशन का, बिकॉज दैट इज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिटी फीलिंग, सिमिलरली ओवर हेयर ऑल्सो। इसीलिए जो है कोई ज़रूरी नहीं है, मजबूरी नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आप अगर आप ये चाहते हैं कि लिंग्विस्टिक डिविजन्स अगर ना हो, तो हमें थोड़ा बहुत कोशिश करनी चाहिए, और पोस्चरिंग की जगह आप कोशिश करिए कि आप जो है उस भाषा को सम्मान देते हुए, यदि आप लंबा वहां रहना है, आप इसरो में हैं, यू आर पोस्टेड इन तिरुवनंतपुरम, देन यू कैन डू सो। अगर आप केरला में हैं, अगर आप तमिलनाडु में हैं, अगर आप पीएसयू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर आप आईटी एम्प्लॉय हैं, तो आई थिंक it is not the question of forcefulness, it is the question of love, it is the question of believing that the place I am living is not just merely
bread and butter provider for us. Basically, it is a kind of a permanent abode or home for me. So practical purpose यही है, और आप इसको ऐसे देख सकते हो. गवर्नमेंट ने रिप्लाई दे दिया नाटो को दैट आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट scenario is to have securing needs. That is our priority. And that is why we don't believe that you must have double standards. क्योंकि यूरोप खुद तो उस तरीके के चीजों को नहीं करता, लेकिन जब बात आती है औरों की, then they start preaching. So that is why the encouragement is there wherever our national interest is coinciding. So India and China are the top importers of Russian crude, and Delhi is engaging US lawmakers and Trump administration to voice concerns regarding energy security of India, and particularly import, with importing around 90% of the total demand. So the massive market share of Russian crude in India's oil import doesn't mean that country is dependent on Russian oil, and other supplies can quickly come in to replace Russian volumes if there is any major disruption. So we can say that even in the case of Russia, the country used to account for less than 2% of India's oil in the beginning, but now things have changed. So that is why we have to see our national interest first. UPSC open window for those who do not make final civil services cut, post details for private jobs. So very important, a very important and a positive step. पहले ऐसा कुछ नहीं था. अब PSUs के अंदर आपको अकॉर्डिंग टू योर कैलिबर आपको जॉब मिल सकती है. सो शॉर्ट बायोडाटा शॉर्ट किए जा रहे हैं, और आप कह सकते हैं कि जो स्कीम है, it is a very positive and an amazing scheme which is going to help. So that is why UPSC has shared list of engineering services, armed force, central armed force police services, central armed police services, geo scientist, CISF assistant commandant, LDC, Indian Economic Service, Indian Statistical Service, and so forth. NGT wraps DPCC on green fund spend. How does an ad help the environment? Very true. एनजीटी ने पूछा कि भाई 130 करोड़ जो आपने इकट्ठे किए, उसमें से आपने 8 से 9 करोड़ तो आपने ऐड पे ही दे दिए 2025 में. बताइए आप, यानी 10% कमीशन भी आया जिसने ऐड छपवाए. लास्ट ईयर डीपीसीसी ने 15 लाख एयर पोल्यूशन पे किए थे, 3.6 लाख ऑन एडवर्टाइजिंग एंड प्रिंटिंग. सो इट्स अ वायलेशन. और ग्रीन कोड यानी एनजीटी का ये कहना है कि रियल ग्रास रूट लेवल पे चेंज होना चाहिए. तो एडवर्टीजमेंट चाहिए, लेकिन पीपल पार्टिसिपेशन ज्यादा चाहिए. So that is why it is a kind of an indication कि आप आंसर्स में क्या पॉइंट ला सकते हैं GS2. आकाश प्राइम टेस्टिफाइड इन लद्दाख, अग्नि एंड पृथ्वी ऑफ उड़ीसा कोस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन जब आप बात करते प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन भी आया था, लेकिन हम कह सकते हैं कि जब आप बात करते हैं इंडियन मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो आपने बोला आकाश मिसाइल जो है वो it can work at altitude of even 4,500 meters. And Prithvi 2 has a range of 350 km and it is capable of carrying payload of up to 500 kg. It can carry both conventional and nuclear warhead. Agni 1, 700 to 900. Very important, and see from the relevant perspective. अहमदाबाद नेम्ड क्लीनेस्ट सिटी, बिल्कुल सही बात है, पर न्यू सुपर लीग में कैसे आई ये देखने वाली बात है. आप ये देखिए कि कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस थी, है ना. सुपर स्वच्छ लीग सिटीज में कौन कौन आ गया? इंदौर, सूरत, नवी मुंबई एंड विजयवाड़ा. मोर देन पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख. चंडीगढ़, मैसूरू, उज्जैन, गांधीनगर among the cities with 3 lakh to 10 lakh population. So that's how we have to see. एक कपल आउट ऑफ एवरी 4 इज ओबेस. शेयर्ड हैबिट्स जो हैं धीरे धीरे उनके कर्व को बढ़ा रहे हैं. साथ बैठ के खाने लग गए, साथ बैठ के बिंग बिंग ईटिंग हो रही है, बिंग वॉचिंग हो रही है. तो ये सोसाइटी के क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो कॉमनेस्ट शेयर बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स, टेलीविजन वॉचिंग है, न्यूज़पेपर रीडिंग है, और फिजिकल एक्टिविटीज एंड डिपेंडेंस है. साथ साथ में आप कह सकते हो कि किस तरीके से डिफरेंट लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की हैबिट्स को पकड़ लेते हैं.
Companies can be victim under criminal law. This is very important. Companies would be falling under definition of victim under the Code of Criminal Procedure, entitling them to file a criminal complaint in a significant ruling to pursue criminal remedies for violation of intellectual property rights. ये सिविल नहीं है, क्रिमिनल हो गया। एशियन पेंट्स ने जैसा किया, और एक्यूज पर्सन को सजा मिलनी बहुत जरूरी है, सिर्फ सिविल नहीं है। सो पॉइंट इज दैट सफरिंग जब होती है काउंटरफिट और फेक प्रोडक्ट से, और उसका सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं है, बाकी हैरेसमेंट भी है, एंड इट इज नॉट आउट ऑफ मिस्टेकन बिलीफ कि पब्लिक सोचती है कि ओरिजिनल पब्लिक खरीद लेती है। तो अभी जो है, अभी तक इंडिया में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लार्जली ट्रीटेड प्रोसिक्यूशन एज अ डोमेन ऑफ द स्टेट, with victims, particularly companies, playing a limited or passive role. But the model have made sense for traditional crimes, but it does not reflect the reality of modern corporate harm. तो modern corporate structure में, modern corporate system में हमें इस चीज को देखना होगा। कैश यूपीआई बेस्ड बिजनेस बाय अनरजिस्टर्ड स्मॉलर बिजनेस अंडर फ्रेश जीएसटी स्क्रूटनी, बिल्कुल सही बात है, ताकि फॉर्मलाइजेशन हो, ताकि रियल टाइम डेटा मिले, ताकि कंट्री के ग्रोथ में आप मदद कर सकें, ताकि फॉर्मल जो ग्रोथ इकोनॉमी का सिस्टम है उसको आप समझ सकें, उसको आप देख सकें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So that is why it is heightened scrutiny and the spate of the recent notices to small businesses जो है वो दिए गए हैं, and they are going to make a difference. 50% crude by pact to cement Aramco tie-up, ONGC और BPCL refineries की बात है। Saudi Aramco is likely to pick up 20% stake. Aramco का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 24,000 करोड़, और ये अपने आप में एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ही फैसिनेटिंग पार्टनरशिप। India will be able to spend 1.5 trillion for climate action if it can, because without that you cannot save. So investment of 200 to 300 billion by 2030 to add 300 gigawatt, as we have discussed number of times, and the investments will be needed to cover areas such as advanced manufacturing and grid integration. रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी भी जो है वो होगी। तो यानी वही बात है कि 1.5 ट्रिलियन मतलब जो है हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये अपने आप में हमें वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए काफ़ी है। इसके अंदर चाहे आप फिर बायो इथेनॉल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और मिथेनॉल कंप्रेस्ड बायोगैस, ये 3 वर्ड आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The basic principles of circular economy are the systems of reduce, reuse, cycle और modern widespread forms of ancient lifestyle। बिल्कुल सही बात है, पहले से अब तक ऐसा आया, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। R&D इनोवेशन फंड, तो यानी R&D जो है वो मदद करेगा हमें। जो डीप कंसल्टेशन के बाद सरकार ने जो बनाया, वाइब्रेंट बेस है एंटरप्रेन्योर्स की, और जो रिस्क है उसको वो कम करेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन करने में मदद करेगा, क्योंकि 10 बार फेलियर होता है तब एक चीज जाके सच होती है। It is not just a long term credit scheme. The government has committed 50-year anchor capital to RDIF, which could be structured as a loan to an intermediary vehicle, but the downstream payment will happen through professional fund managers. तो वही है कि ये कोई आइसोलेशन में नहीं है, इंडिया की जो ब्रॉडर इनोवेटिव स्ट्रैटेजी है उसका पार्ट है। अभी एक दिन पहले भी हमने चर्चा की थी, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये टर्म आना चाहिए, और स्केलिंग करना है हमें थ्रू द क्राउडिंग इन ऑफ कैपिटल। नेशनल प्लेटफॉर्म भी हम बनते हैं ग्लोबल इनोवेशन के लिए, जिसके हमने पहले भी इसरो के थ्रू, हमने सेमीकंडक्टर के थ्रू, हमने मोबाइल, फिर हमने साथ में ग्रीन एनर्जी, इन सब के थ्रू हम बन रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो IDIF इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। वही इमिशन नॉर्म्स आर किकिंग अप स्टॉर्म, बिकॉज वही बात है कि भाई यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, उन्होंने इंटरनेशनल ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड सेट किए हैं, और हम तो उससे पीछे हैं, हमारे यहाँ पोल्यूशन भी है। तो इसीलिए बार बार जब तक सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इमिशन नॉर्म्स का जो है चर्चा होती रहेगी। और वही बात है कि जो व्हीकल्स की जो व्हीकल हार्मोनाइज लाइट व्हीकल्स टेस्ट प्रोसीजर है, उसकी बात होगी कि वो मदद कर सकता है। और उसके बाद आप कह सकते हो कि क्लीनर टेक्नोलॉजीज, एनर्जी कंजर्वेशन, ये सारे एलिमेंट हमारे आ जाएंगे।
अ नेशन वाइड जीएसटी आइडेंटिफिकेशन मैंडेट, अब मैंडेट है, कैसे दे दें, सरकार के ऊपर तो डंडा है, जनता नाराज, पार्टी नाराज, गेम खराब, इसलिए नहीं देंगे। तो मैंडेट कैसे दे दें? मैंडेट देने के लिए तो और ज्यादा क्लैरिटी, और ज्यादा बुद्धि चाहिए। तो इंडियन गुड एंड सर्विस टैक्स कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी सिंप्लीफिकेशन का प्रॉमिस करने के बावजूद आगे बढ़ा। ई इनवाइसिंग है, पैन 2.0 इनिशिएटिव भी आ रहे हैं, सिंगल जीएसटी, ऑल इंडिया आइडेंटिटी भी आ रही है। लेकिन वही बात है, इसमें अभी समय लगेगा, हमें बाकी कंट्रीज से भी सीखना है। India's pact with ASEAN is becoming a casualty of tariffs. Very important to see, very important to understand. India's trade pact with ASEAN is becoming a casualty of tariffs. तो टैरिफ नहीं आने चाहिए, क्योंकि ट्रम्प की पॉलिसी आ गई, चाइना का रोल है, और पॉलिसी मेकर जो है उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। वियतनाम ने एंटी डंपिंग टैरिफ इंट्रोड्यूस कर दिया है, सर्टेन काइंड ऑफ चाइनीज स्टील के। इंडोनेशिया ने बैन ही कर दिया डायरेक्ट शिपिंग ऑफ ई कॉमर्स एप्स लाइक टीमू। तो वही बात है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फिर मतलब ही क्या रह गया, जब आप अपने आप को बचाने चल रहे हो अमेरिका के चक्कर में, तो आप एफटीए तो खो दोगे। ऐसे में इंडिया को क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़े, कैसे अपने सिस्टम को चलाए रखे, वो हमें सोच के लिखना होगा। कावेरी बामदेव जी का कहना है कि दैट देयर मस्ट बी नेशनल रोपवे पॉलिसी। अरे बहुत सारी चीजों की पॉलिसी चाहिए, यहाँ तो ब्रिज गिर रहे हैं। मैं कहता हूँ नेशनल, एंटी ब्रिज, एंटी ब्रिज फॉल, ऐसा कुछ पॉलिसी होना चाहिए। तो ग्राउंड रियलिटी मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज की है, जैसे गुवाहाटी उमानंदा रोपवे के ये बात कर रहे हैं, आप केदारनाथ में बात कर रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर में बात हो रही थी, माता वैष्णो देवी में, कटरा में, उसके बाद सबने प्रोटेस्ट किया। तो आई डोंट नो द लेटेस्ट स्टेटस, लेकिन रोपवे पॉलिसी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे पहले और बहुत सारी चीजें हैं। शुगर मिल स्विच टू ग्रेन्स टू बूस्ट इथेनॉल आउटपुट, वेरी इंपॉर्टेंट। शिफ्टिंग फ्रॉम मोलेसिस टू ग्रेन्स लाइक मेज, ये मेन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंडिया में 269 कोऑपरेटिव शुगर मिल है, 93 जो है वो मोलेसिस बेस्ड डिस्टिलरी बनाती हैं, और उसमें से 10 ने जो है कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग शुगर केन बेस्ड मोलेसिस फीडस्टॉक इथेनॉल प्लांट्स टू मल्टी फीडस्टॉक बेस्ड प्लांट्स की उन्होंने रिक्वेस्ट की। दिस इज गोइंग टू हेल्प। और इन 10 स्टेट्स में आप कह सकते हैं इंडिया का लार्जेस्ट शुगर केन ग्रोइंग स्टेट, और महाराष्ट्र की बात हो रही है, और गुजरात जो है वो, गुजरात और कर्नाटक उसके बाद आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुगर केन से जो शिफ्ट हो रहा है बायोफ्यूल्स की तरफ, उसको आप कैसे पुटअप करेंगे विद इन वन पैराग्राफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव शुगर मिल इन इंडिया, दे आर प्रोड्यूसिंग व्हाट वी कैन से 3.5 बिलियन ऑफ इथेनॉल एनुअली। और इन टर्म्स ऑफ शुगर आप फैक्ट नोट कर लीजिए, कोऑपरेटिव शुगर मिल्स अकाउंट फॉर अराउंड 35% of the national output, which is estimated to be 26.1 million. So with these ideas and thought, I leave you so that you can make your points, you can raise questions, you can answer them also sufficiently, and we can discuss further, so that your answer, your learning, and your success becomes a lot easier. Thank you very much for being with Ansarkari and working in the direction which will bring you success, and that is the power of different courses launched by Ansarkari.